Good morning, dear students. Chapter number 12 Atoms, Standard 12 Science. Today we have discussed a new topic. In previous lecture, we can discuss three hypotheses of Bohr. Now, today we have discussed using Bohr's atomic model, derive an equation of the radius of the nth orbit of an electrons. Show in figure at the center of atom at the center of atom positive charge positive charge proton is Ze. Z is atomic number and electrons revolving around the protons. Let's consider mass of electron is small m and the charge of electron is E, and the linear speed of electrons is in direction of tangent. So radius and the speed of electron are perpendicular to each other. So here 90 degree. So here different two types of force acting on electron. One is centripetal force produced due to center, and second force is electric force produced due to charge. So centripetal force is equals to mv square by r. And electric force is equals to 1 by 4 pi epsilon naught product of their charges divided by distance square, यानी ZE into E by R square. 1 R cut, तो mv square is equal to ZE square by 4 pi epsilon naught R. mv square is equals to ZE square by 4 pi epsilon naught R. From equation number 1, from Bohr second hypothesis, angular momentum L is equals to mvr and is equal to nh by 2 pi. Now squaring both the sides, so here m square v square r square is equals to n square h square by 4 pi square. अब ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे आपको सेट करना है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह हम लिखे एम स्क्वायर के दो स्टेप, एम इंटू एम वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो वही हुआ एम स्क्वायर. तो एम इंटू एम वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर. ये पूरा फॉर्मूला हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें एम वी स्क्वायर की जगह, तो जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर स्क्वायर. तो here 4 कट, 1 पाई कट, 1 आर कट, तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर. तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर. And this equation is a radius of orbit, radius of atom, and from this equation are proportional to n square by z, are proportional to n square by z. For hydrogen atom z is equals to 1, तो r is equal to n square h square epsilon naught by pi m e square, and from this equation r proportional to n square. This is the most important theory of this chapter. Derive the equation of radius of atom. फॉर्मूला भी आपको याद रखना है JEE नीट के लिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर. नेक्स्ट थियरी, derive an expression for the total energy of electron in nth orbit. Once again, positive charge Ze, mass of electron is m, charge of electron is E, linear speed is v, perpendicular v and r, centripetal force is equals to Coulombian force, we know that.
तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर. 1 आर कट, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करो तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय 4 2 8, तो जेड स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा जेड स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. जेड स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था. ऊपर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस k q1 q2 बाय r. एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी. दोनों का समीशन करो तो आपको मिलेगा टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू k प्लस यू. तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एलसीएम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. बट व्हाट इज आर रेडियस ऑफ एटम, उसकी जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा, तो आर इज इक्वल टू हमने आगे ही डिराइव किया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर. पाई कट एम जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला होगा माइनस एम जेड इंटू जेड स्क्वायर ई रेज टू 4, तो माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस इज अ एनर्जी equation for energy, total energy for hydrogen atom. From this equation, energy depends on z square by n square. Energy depends on z square by n square. For hydrogen atom, z is equals to 1. Z is equal to 1. So formula is minus m e raised to 4 minus m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square n square h square. अब इसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें. सो वी गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज -13.6. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is -13.6 divided by n square. -13.6 divided by n square electron volt. So this is a total energy for hydrogen atom. Now speed of electrons. अब हम काफी और 2-3 इक्वेशन डिराइव करें. तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको इक्वेशन डिराइव करना है, तो फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स. तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर. 1 आर इज कट, एम नीचे ले जाओ तो जेड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर. फिर से हम आर की जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर. तो उसको ऊपर ले जाओ, पाई एम जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा, पाई कट होगा, एम कट होगा, तो आंसर इज जेड स्क्वायर e raised to 4 divided by 4 epsilon naught square n square h square. Z into z square e raised to 4 divided by 4 epsilon naught square n square h square. इसका स्क्वायर रूट करो तो z स्क्वायर का z e raised to square 2 epsilon naught n h. तो this is the speed of electron in hydrogen atom. From this equation, velocity depends on z by n. z by n. अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम.
speed is equal to distance upon time. If electrons revolving around the protons, if one rotation completed, then displacement distance कितना होगा, circumference जितना 2 pi r, और उसके लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड 2 pi r by capital T. तो 2 pi r by capital T is equals to v की जगह हमने इक्वेशन डिराइव किया z स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH. फिर से इसमें r की वैल्यू अप्लाई करो, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m z स्क्वायर, पाई कट, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 टू ज़ा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन 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 स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय m z स्क्वायर e रेज टू 4. 4 epsilon naught square n cube h cube divided by m z square e raised to 4. This is the equation for periodic time. And from this equation, t proportional to n cube by z square. n cube by z square. इसका रेसिप्रोकल करो तो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, तो इसका उल्टा कर दो, एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 divided by 4 epsilon naught square n cube h cube. This is a frequency nu proportional to z square by n cube. Angular frequency omega is equals to 2 pi nu. Omega is equals to 2 pi nu. Nu का फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 टू ज़ा 4, तो आंसर इज पाई m z square e raised to 4 divided by 2 epsilon naught square n cube h cube. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई m z स्क्वायर e रेज टू 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब. तो ये हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव किए, रेडियस, टोटल एनर्जी, स्पीड, टाइम पीरियड, frequency and angular frequency.